Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan Sir. Myself Dr. Rajan Kumar Srivastav. Once again I am here before you. All of you have given me so much appreciation and this channel receives enormous appreciation. More than 1500 views, 161 subscribers and several actually have liked my video. Thanks for that. So hello viewers, I will give you here introduction and I will give you complete summary and I will explain it also. So let's start here. John Updike first. He was a novelist, story writer. He was born in America. He was born in 1932 and he died in 2009. He was the winner of National Award, Pulitzer Prize for Fiction. This story is very interesting. So I give you introduction here. This story should bizarre hit mommy with a child's view of the world and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. Jack means here Johnny's father had become accustomed to, or putting it more precisely, obligated to telling stories out of his head to his daughter Johnny during the evenings and Saturday afternoons. This tradition itself was now 2 years old and Johnny had been 2 when it started. These stories were almost the same except for some slight variations. It started with a creature usually named Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, who had some problem and went with it to the wise owl. The owl directed him to go to the wizard who would solve his problem. In exchange for a few pennies means here as a coins, more than the creature had, and in the same breath would direct the creature to go to a place where he could find it. Then the Roger creature would be happy and would return home just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. Now the main theme of this story is the relation of children with their parents. Children's fantasies and the message of stories they bring with them affect children and sometimes make them critical. Here main characters, Jack is the protagonist of the story. Protagonist means जो प्रमुख पात्र होता है, main character. He is a married man. His wife Claire is pregnant and they have a 4-year-old daughter Jo and a 2-year-old son Bobby. Second character Jo. She is Jack and Claire's 4-year-old daughter. She is a growing girl. As she is growing, she has begun to contradict things. Next character, Roger Skunk. Roger Skunk is the protagonist of the story that Jack narrates to Jo. यानी कि यहाँ पर जैक जो स्टार्ट करता है कहानी सुनाना जो को, उसमें जो प्रमुख पात्र हो जाता है वो रॉजर स्कंक हो जाता है. He is bullied for his foul skunk smell. He wants nothing more than to play with the other animals. Now, I will give you here complete summary in Hindi and English. The story Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike, revolves around the conflicting views of a child and a parent
On the child's future, parents express their own expectations. They desire that their children should grow up as per their expectations. However, children have their own ambition and aspirations. इस कहानी में शुड विजार्ड हिट मम्मी जो जॉन अपडाइक के द्वारा लिखा गया है, ये पूरी की पूरी कहानी घूमती है एक कॉन्फ्लिक्ट व्यू के साथ जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में है। पेरेंट्स ये दिखाते हैं कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है बच्चे उनके अनुसार ही कार्य करें, लेकिन यहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, उसकी जो एम्बिशन है, एस्पायरेशंस है, उसकी इच्छा जो है वो अलग है। जैक यूज्ड टू टेल हिज लिटिल डॉटर जो बेड टाइम स्टोरीज। जैक यहाँ पर अपनी लड़की, छोटी लड़की जो उसकी जो है, उसको रात में जब सोने का वक्त होता था तब वो कहानियाँ सुनाया करता था। व्हेन सी ग्रू अ लिटिल ओल्डर सी बिगेन टू आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। धीरे धीरे जो जब बढ़ती गई, बड़ी होती गई, तो तरह तरह के क्वेश्चन अपने डैडी से पूछने लगी। फॉर सम टाइम जैक वॉज नॉट एबल टू इन्वेंट न्यू स्टोरीज। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जैक नई कहानियों को तो भाई बार बार बताने में सक्षम तो था नहीं, कितनी कहानियों बनाएगा। दस द बेसिक स्टोरी वॉज द सेम बट इट्स हीरो चेंज। इसलिए उसकी जो बेसिक कहानी होती थी, मूल कहानी, वो तो वही होती थी। हाँ, उसमें वो हीरो जो होता था, उसका नायक पात्र, उसमें चेंज हो जाता था। द हीरो ए स्मेल एनिमल नोन एज रॉजर मीट्स एन आउल विद इट्स प्रॉब्लम। तब वो नायक एक छोटा सा जानवर जिसको हम रॉजर के रूप में जानते हैं, वो एक बूढ़े आउल से मिलता है अपनी समस्या के साथ। द आउल डायरेक्ट्स रॉजर टू द विजार्ड। बूढ़ा उल्लू उस रॉजर को विजार्ड, एक जादूगर के पास भेजता है। द विजार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम विद हिज मैजिक बैंड। वो जादूगर उस समस्या को अपने मैजिक बैंड से, मतलब अपनी जादुई छड़ी से, उसको सॉल्व कर दिया। रॉजर फेल्ट गुड। रॉजर को अच्छा लगा। ही प्लेड अलॉन्ग विद एनिमल्स ऑफ द वुडलैंड। वहाँ पर और जो जानवर थे सब उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। वो सब उसके पास आ गए क्योंकि उसकी स्मेल जो थी, अब तक जो बैड स्मेल थी, अब वो कन्वर्ट हो गई थी गुड स्मेल में। बट व्हेन हिज फादर यूज्ड टू कम बैक, लेकिन जब डैडी वापस जब आते थे, देखे उसने, तो ही वेंट बैक होम टू ईट सपर विद हिम जो फील्स हैप्पी विद दिस एंडिंग। इस सब को देख करके जो बहुत ही खुश होती। लेटर हर फादर टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए लिटिल एनिमल कॉल्ड रॉजर स्कंक। बाद में डैडी ने एक कहानी बताई लिटिल एनिमल जिसका नाम था रॉजर स्कंक। जस्ट लाइक अदर हीरोज़ ऑफ हिज स्टोरीज। ये वैसे ही कहानी थी जैसे अन्य पात्रों की कहानी। इवन स्कंक हैज़ ए प्रॉब्लम। यहाँ स्कंक को एक समस्या है। ही यूज्ड टू स्मेल ऑफुली बैड। वो बहुत ही बुरा जो है गंध आता था उसका। द विजार्ड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज। जादूगर ने उसके स्मेल को रोज़ की तरह बदल दिया था, गुलाब की तरह महक रहा था। लिटिल एनिमल्स लाइक्ड हिम एंड प्लेड विद हिम। सभी छोटे जानवर उसके साथ आए और खेलने को तैयार हो गए। जो वाज अगेन हैप्पी, जो एक बार खुश हो गई। हाउएवर स्कंक मदर वांटेड स्कंक टू गेट बैक हिज ओरिजिनल स्मेल। लेकिन स्कंक की मदर ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है, मेरा बच्चा जैसे स्मेल पहले करता था वही मेरे लिए अच्छा है, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, ये उसका ओरिजिनल स्मेल तो है नहीं। तो इसने क्या किया, वो तुरंत स्कंक को कही, चलो मेरे साथ, तुम्हारे विजार्ड के पास चलते हैं, कौन विजार्ड तुम्हारी स्मेल को चेंज किया है। सी टुक हिम बैक टू द विजार्ड। वो वापस उस विजार्ड जादूगर के पास गई। द विजार्ड, जो कि दिखने में लगता था ना, टोपी एक बड़ी सी लंबी सी लगाया था, कोन वाली लंबी वाली, और लबादे वाले कपड़े पहने हुए थे, हाथ में उसके एक मैजिक बैंड थी, और वो रहता था बन के एक नदी के जो है बिल्कुल पास में, वहाँ पर कुटिया में छोटे में रहता था, छोटे से कद का था वो। तो विजार्ड जहाँ पर रहता था, जिस विजार्ड के पास गया था स्कंक आउल के डायरेक्शन पर, तो वहाँ जा कर के उसने कुछ पेन्नीज भी दिया था, कुछ पैसे भी दिया था, कहा बाकी को पैसा मैं तुमको दे दूँगा। उस पैसे की जरूरत में वो था। उसने एक रास्ता बताया कि यहाँ कैसे कॉइन्स को तुम कैसे दे सकते हो, ज़मीन पे किस तरह से उसको तुम ऐसा करोगे, लाइन बनाओगे तो किस तरह से हमको कॉइन्स सब मिल जाएंगे। द विजार्ड अगेन मेड स्कंक स्मेल एज ऑफुल एज एवर। विजार्ड एक बार फिर स्कंक जो था वैसे जैसे स्मेल उसकी पहले आती थी बदबूदार, वैसे ही फिर कर दिया। बेचारा क्या करता, उसकी मदर गई और इतना नाराज़ हो गई, तुरंत उसने विजार्ड को ही शिफ्ट कर दिया। तब यही क्वेश्चन उसके मन में उठता है, जो कोई कहानी सुनते सुनते, कि यहाँ पर
मदर ने, स्कंक की मदर ने विजार्ड को जाके मार दिया। विजार्ड बेचारा डर के नाते जल्दी से उसके बच्चे को वही स्मेल वापस कर दिया, हड़काई गई, और ये लड़के का जो स्मेल था ओरिजिनल वाला उसको वापस करो, कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर जो सोचती है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शुड विजार्ड हिट मम्मी। यहाँ तो विजार्ड को मम्मी को जो हिट कर देना था, क्या रे तो अपने बच्चे के उसकी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर रही हो। ये इस तरह से क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन भी मार्क लगा हुआ है इसमें, इस टाइटल में, शुड विजार्ड हिट मम्मी क्वेश्चन मार्क। ये फीलिंग्स किसके अंदर आती है, जो के अंदर आती है। वो जो कौन है, वो जो कहानी सुन रही है, कौन सुना रहा है, जो उसका डैडी सुना रहा है, जो जैक है। और जो कहानी सुना रहा है किसके बारे में सुना रहा है, रॉजर स्कंक के बारे में सुना रहा है। और रॉजर स्कंक कौन है, वो एक एनिमल है जो किसके डायरेक्शन में जाता है, जादूगर के पास, जो कि एक आउल के डायरेक्शन में जाता है। तो स्कंक मदर वाज हैप्पी। अब स्कंक की मदर तो खुश हो गई, कही अरे अब तो मेरा बच्चा पहले जैसा ओरिजिनल वाला स्मेल हो गया। हाउएवर जो वाज नॉट हैप्पी, लेकिन जो तो खुश नहीं थी भाई। वो तो सोचती थी कहानी वहीं एंड हो गया होता तो बढ़िया था, बढ़िया उसको स्मेल मिल गया था, सब चीज़ें फर्स्ट क्लास हो गई थी, बड़ा बढ़िया था। सी डिजायर्ड दैट द विजार्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर। सोच रही थी, उसकी इच्छा ये थी कि विजार्ड ही उसके स्टूपिड मदर को पहले जो हिट करना चाहिए था। हाउएवर, लेकिन जैक डिफेंडेड द मदर्स एक्शन, लेकिन जैक ने फिर भी माँ के इस एक्शन का क्या किया, पक्ष किया, उसने बचाव किया। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू have understood the summary. I have given you summary in Hindi and English and explained it also. So thanks. So hello viewers, actually all of you have seen my video continuously, and I hope that all of you will prepare your notes, and if you like my video, please subscribe my channel and like my video and press bell icon inside so that you may receive all my notification to all of you first. So thanks for watching my video. Thanks a lot.